खुर्शीदा परवीन और न्यूज़ मोमेंट उर्दू से आपका इस्तकबाल करती हूँ। न्यूज़ मोमेंट आज की खबरों की सुर्खियां दर्ज है। और तो और नौजवानों को उनकी तवक्कात के मुताबिक रोज़गार नहीं मिला। यह नतरिया ब्लॉक के तहत कारखानों से दिखाया गया, लेकिन आलूदा माहौल फ्लाई ऐश से भरा हुआ है। इसके बारे में मत ही पूछें। रानीगंज के बलकपुर में दामोदर नदी का बहाव नहीं था। रेत माफिया ने डैम बनाकर दामोदर नदी का बहाव रोक दिया। अजीमुल शान संथाली रस्मुल खत 120वीं अव्वल चक्की के वालिद पंडित रघुनाथ मरमू की यौम पैदाइश के मौका पर रविंद्र भवन के सामने मुनक़द हुआ। मौजूदा चीफ जस्टिस का वक्त की दरख्वास्तों पर समाअत से इनकार। पाकिस्तानियों के वीज़े मनसूख करने और उन्हें मुल्क से बाहर निकालने के मुतालबे पर बीजेपी का जिला मजिस्ट्रेट के ऑफिस का घेराव का मुहिम इससे पहले अदालत में मुलाकात की। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट। For more details and for advertisement, contact editor 9563 830285. डबल BA ऑनर्स, BCA ऑनर्स, BSc बायोटेक्नोलॉजी ऑनर्स, DHM ऑटोनोमस रिसर्च इंस्टीट्यूशन काजी नजरुल यूनिवर्सिटी मगरबी बंगाल और AICTE मंजूर शुदा कॉलेज से वाबस्ता। दाखिला जारी www.research.ac.in। दाखिला जारी है। दाखिला के लिए कॉल करें। हमारा नंबर है 8509276747 9339316820 8389866920। नए कैंपस की नई शुरुआत। सेशन 2025-26 की क्लासेस हमारे बिल्कुल नए कैंपस पर शुरू होती है, जो एक दिलचस्प सफ़र के लिए तैयार हैं। খালি 1000 लेकिन केतो डस्ट আসছে केतो সুবিধা তো দিচ্ছে পাচ্ছে না 1000 কিছু মামলা নেই দরকার নাই তো আমরা বলেছি লক্ষ্মী ভান্ডার আমাদের দরকার নাই মানে না যে লক্ষ্মী ভান্ডারের জন্য আমরা এই সিমেন্ট গুড়ি খেতে পারবো না শরীর রোগ বিঘিন হয়ে যাবে কাল দিন কোন অসুখ হয়ে যাবে তখন আমাদের কে দিবে ক্ষতি কইছে মানুষ একটা জীবনটা চলে জীবনটা কে দাম করবে বাচ্চা যেগুলা আছে বাচ্চাগুলা শ্বাস প্রশ্বাস কষ্ট হচ্ছে এইগুলা মানে ওগুলা কে ঘুরাই দিতে পারবে না একটা জীবন নষ্ট হয়ে গেল আর আমাদের জীবন নষ্ট এটা অতিরিক্ত বেড়ে গেছে এত ডাস্ট মানে সীমানার বাইরে ডাস্ট চলছে আমরা খাবার খাই করতে পারি না সরস্বতী পাল মানে এমনি পজিশন দাঁড়াই গেছে ছাদে তো আমাদের তো কোনো মতে আমাদের উঠা যাচ্ছে না পুরো আই হয়ে গেছে আদুরি পাল আদুরি हां आदुरी पाल सीमेंट फैक्ट्री तो होते दिया भूल का कहना है कि भंडार के तरफ और तो और नौजवानों को उनकी तवक्कात के मुताबिक रोज़गार नहीं मिला। यह नतरिया ब्लॉक के तहत कारखानों से दिखाया गया, लेकिन आलूदा माहौल फ्लाई ऐश से भरा हुआ है। इसके बारे में मत ही पूछें। लोग हंगामा कर रहे हैं और वजीर आला ममता बनर्जी से अपील कर रहे हैं। लोग दीदी से कहते हैं कि लक्ष्मी भंडार के पैसे मत दो, बल्कि फ्लाई ऐश और आलूदगी से आज़ादी दो, ताकि हम सब एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। काबिल ज़िक्र है कि नितुरिया के दीघा ग्राम पंचायत के तहत पुरोतपुर और आसपास के गांव में श्री सीमेंट की उड़ती धूल परेशान का बाअस बनी हुई है। आइए आवाम से सुनते हैं। मंजुरा पाल শ্রী সিমেন্ট ফ্যাক্টরি থেকে কি কি অসুবিধা আছে আপনাদের? ফ্যাক্টরি থেকে প্রচুর সিমেন্ট উঠছে, আমরা ঘরে থাকতে পারছি না, ছাদের উপর আমরা ঘুমাইতে পারছি না, নিঃশ্বাস নিতে পারছি না, এমন কষ্ট হচ্ছে আমাদের। মানে যদি এই গাড়িটা থাকে না রাতে সকাল উঠে দেখবে গাড়িটা ভরে গেছে, গাড়ির সিটটা না এমনি প্রচুর সাদা হয়ে গেছে, প্রচুর সিমেন্ট উঠছে। ধান তো হচ্ছে না, না ধান হচ্ছে না তো, এই তো বাড়ি দিকে আমাদের খেতগুলো সব মানে এমন জীবাণু জলটা বাইর করছে, ওই জলটাতে কোনো কাজ হচ্ছে না। জল তো কোন দিকে যাচ্ছে? কোন দিকে? এদিকে তো আসছে, আমাদের খেতে বয়ে বয়ে আসছে। আচ্ছা আচ্ছা,
অসুবিধা সব 12 মাসেই আছে, যখন থেকে শুরু করেছে তখন থেকেই আছে। এই যখন অল্প জল হবে বর্ষা মাস তখন কিছুটা কম থাকে, আচ্ছা আচ্ছা। 12 মাস আমাদের অসুবিধা আছে। কত বলা বলি করছেন? বলা বলি হয়েছে শুনছে নাই? না, অবজেকশন হয়েছে, ওইটার জন্য চিঠি পত্র সব হয়েছে। খাবার জল কিসে খান? খাবার জল হ্যাঁ, এই যে নলকূপ, নলকূপ। কুয়া জল তো চলে না? কুয়া জলও খাই, কখনো কখনো খাই না, এখন খাই না, অনেক আগে খাওয়া হয়েছে। এখন তো ওই যে সিমেন্ট আর কালি ভরি গেছে। আর চান করার জল? চান কলা জল পুকুর, পুকুরও সেই? পুকুর হুম। আর আপনি দেখে আসুন পুকুরটা, হুম। ওইখানে কালেই আর সিমেন্ট একদম পুরো হয়ে আছে, যেমনি দুধের সর কেমন পড়ে সেরকম পড়েছে। ও কারখানার জলগুলা পুকুরের উপরে? হ্যাঁ, পুকুরে না, ওই সাইডিং এর জলটা তো ঢুকছিল, এবছর ঢুকেছে, মাছ মরে গেছে ঢুকে। মাছ ভরে গেছে? মাছ কারা চাষ করে এখানে? মাছ উপর দিকে আছে মডাররা। ও আচ্ছা। আপনার নাম? যাচ্ছে মানে ভবিষ্যৎটা মানে উজ্জ্বলের দিকে যাচ্ছে না, এই সিমেন্ট ফ্যাক্টরি হয়ে ভবিষ্যৎ অন্ধকারের দিকে যাচ্ছে। হ্যাঁ, কষ্ট আর আমাদের কিছুই নেই। আমরা ওদের থেকে এলে আমাদের জমি জায়গা করা হয়েছে, আমাদের তো অসুবিধা হয়েছে। জায়গাগুলো নিচ্ছে আপনাদের? না না না, আমাদের জায়গা रानीगंज के बल्लभपुर में दामोदर नदी का बहाव नहीं था। रेत माफिया ने डैम बनाकर दामोदर नदी का बहाव रोक दिया। रानीगंज शहर दामोदर नदी के किनारे वाक़ है, जहां का मरकज़ी घाट बल्लभपुर घाट है। रानीगंज और आसपास के इलाकों के लोग मुख्तलिफ त्योहारों के दौरान दरिया में नहाते हैं, जिसके लिए उन्हें रानीगंज के बल्लभपुर घाट जाना पड़ता है, क्योंकि ये इस इलाके का सबसे बड़ा नदी घाट है। यहाँ जनवरी तक दरिया मुसलसल बहता था, लेकिन अब रेत माफिया की जानिब से दरिया पर डैम बनाने की वजह से दरिया का बहाव रुक गया है। नदी के दूसरी तरफ मेजिया में नदी बहती है। इलाके का सबसे बड़ा शमशान घाट होने की वजह से दूर दराज से लोग मैयत की तदफीन के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ से रोज़ाना सैकड़ों ट्रकों पर 18 पहियों तक ओवरलोड करके रेत निकाली जाती है। ज़्यादातर ट्रक रेत से भरे होते हैं, जिस पर इंतज़ामिया की तवज्जो के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जाती। जबकि रानीगंज थाने का बल्लभपुर फाड़ी यहाँ से करीब ही वाक़ है। इस मामले के बारे में आसनसोल जनूबी बीजेपी एमएलए अग्निमित्रा पाल ने कहा कि दरियाए दामोदर से तिरास से बल्लभपुर तक रेत चोरी की जा रही है। बड़ी बड़ी मशीनों से दरिया के किनारे बीच गड्ढा खोदकर रेत निकाली जा रही है। दरिया पर डैम बनाकर रानीगंज इलाके के नदी के बहाव को रोक दिया गया है। दुर्गापुर में POCSO एक्ट के तहत 4 को गिरफ्तार किया गया। 4 लोगों को नाबालिग से छेड़छाड़ करने के इल्ज़ाम में पोक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार शख्स को दुर्गापुर सब डिविजनल कोर्ट ले जाया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक दुर्गापुर थाना इलाका में कई लोगों पर एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ का इल्ज़ाम है। इस वाक़े के बारे में नाबालिग के ख़ानदान की जानिब से दुर्गापुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस शिकायत की बुनियाद पर तहकीकात की बुनियाद पर हफ्ते की रात दुर्गापुर थाना इलाका से 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया। चूँकि पोक्सो अदालत बंद थी, जज ने उनकी ज़मानत मुस्तरद कर दी और उन्हें 1 दिन की जेल की तहवील में रखने का हुक्म दिया। जज ने अगले दिन गिरफ्तार शुदा को दुर्गापुर सब डिविजनल कोर्ट की पोक्सो कोर्ट में दोबारा पेश करने का हुक्म दिया। पोक्सो एक्ट हिंदुस्तान में एक कानून है जो 18 साल से कम उम्र के बच्चों को जिनसी इस्तेहसाल हरासा करने और इस्तेहसाल से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है और बच्चों के लिए दोस्ताना कानूनी अमल का यकीनी बनाता है। अज़ीमुल शान संथाली रस्मुल ख़त 120वीं अव्वल चक्की के वालिद पंडित रघुनाथ मर्मू की यौम पैदाइश के मौका पर रविंद्र भवन के सामने मुनक़द हुआ। इस तकरीब की क़यादत आसनसोल ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कबायली कमेटी ने की। पंडित
मरमू ने न सिर्फ एक रस्मुल ख़त तख्लीक किया बल्कि इसने संथाली बिरादरी को लसानी इज़्ज़त नफ्स और सकाफ़ती शनाख्त भी दी। तकरीब के दौरान लोगों ने मोमबत्तियाँ जलाकर और अव्वल चेक स्क्रिप्ट में खुतूत लिखकर उन्हें खराज तहसीन पेश किया। गुरदास सदर ऑल इंडिया स्टूडेंट ट्रायल फॉर्म आसनसोल ब्रांच ने कहा, पंडित मरमू ने हमारे मुआशरे को आज़ाद दी। अव्वल चेकी लिपि ने हमें शनाख्त और फ़ख्र दिया है। आज का दिन हमारे इत्तेहाद और इज़्ज़त नफ्स की अलामत है। प्रोग्राम में नौजवानों ने जोश व खरोश से हिस्सा लिया। रवायती रक़्स और गानों की प्रेजेंटेशंस, अव्वल चेक स्क्रिप्ट पर मबनी नुमाइश, स्कूल के तलबा का तकरीरी मुकाबला, ख्वातीन ने रवायती कपड़ों में सकाफती रैली निकाली। 2 मेमो स्पेशल ट्रेन की चलने का तसलसल। आसनसोल रेलवे ने 03145 03146 देवघर गुड्डा देवघर मेमो स्पेशल और 03147 03148 भागलपुर देवघर भागलपुर मेमो स्पेशल को इसके मौजूदा स्टॉप के मुताबिक 9 मई तक जारी रखने का फैसला किया है। बस हादसे में 2 भैंसें जाँ बहक, एक की हालत तशवीशनाक। आसनसोल से दुर्गापुर जाते हुए SBSTC की बस इतवार की शाम जमुड़िया पुलिस स्टेशन के तहत काली पहाड़ी के करीब हादसे का शिकार हो गई। इस वाक़े में सड़क अबूर करने वाली 3 भैंसें बस की जद में आ गई, जिसकी वजह से 2 भैंसें दम तोड़ गई और एक भैंस बस के नीचे आ गई। मौसूला इत्तला के मुताबिक ये बस काली पहाड़ी के करीब एक निजी अस्पताल के सामने से गुजर रही थी जब सड़क से गुजरने वाली 3 भैंसों को बस ने टक्कर मार दी। वाक़े में 2 भैंसें मर गई और एक भैंस बस के नीचे फंस गई। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। DRM आसनसोल के दफ्तर में रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए तारीख की अदायगी। अप्रैल 2025 के महीने के लिए एक ऑन डेट अदायगी की तकरीब का इन्नेकाद नए कॉन्फ्रेंस रूम श्री परवीन कुमार प्रेम एडिशनल में किया गया। डिविजनल रेलवे मैनेजर आसनसोल डिवीज़न ने तस्फिया के वाजबात, PPO तस्फिया की तफसीलात और कार्ड लिबरलाइज्ड हेल्थ स्कीम कुल 27 तादाद में रिटायर्ड अफसरान रेलवे मुलाजमीन की बेवा को हवाले किया। श्रीमती बबल यादव, सीनियर DP, डॉक्टर रजनी सिन्हा DMO इस प्रोग्राम में डिविजनल रेलवे अस्पताल आसनसोल के आसनसोल और दीगर अफसरान मौजूद थे। मौजूदा चीफ जस्टिस का वक्फ की दरख्वास्तों पर समाअत से इनकार। हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने पीर को बताया कि वक्फ तरमीमी एक्ट 2024 को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों को जस्टिस BR की क़यादत वाली बेंच के सामने दर्ज किया जाएगा। कार्रवाई 13 मई को अपनी आने वाली रिटायरमेंट के पेश नज़र उन्होंने कार्रवाई के दौरान रिमार्क्स देने के वो इस मरहले में कोई हुक्म या हुक्म सुनाने के लिए माइल नहीं है, क्योंकि इस मामले की तफसीली समाअत की ज़रूरत है। पिछली समाअत में मरकज़ी हुकूमत ने बेंच को यकीन दिलाया था कि जस्टिस संजय कुमार और KV विश्वनाथन ने कहा कि वो ना तो वक्फ इमलाक को डीनोटिफाई करेगा,
बिशमोल सारिफ के जरिया वक्फ और न ही 5 मई तक सेंट्रल वक्फ काउंसिल और बोर्ड में कोई तकर्री करेगा। पाकिस्तानियों के वीज़े मंसूख करने और उन्हें मुल्क से बाहर निकालने के मुतालबे पर बीजेपी का जिला मजिस्ट्रेट के ऑफिस का घेराव का मुहिम इससे पहले अदालत में मुलाकात की। अजतमा से खिताब करने वाले मुअज्जिज़ीन में कृष्णनंदू मुखर्जी, एमएलए अग्निमित्रा पाल, देवतनु भट्टाचार्य, बप्पा चटर्जी और दीगर शामिल थे। आइए उनकी तकरीरों के कुछ हिस्से देखें। আপনার বাড়ির ছোট মা বোনের বউয়ের সুরক্ষার দায়িত্ব আপনাদের নৈতিক কর্তব্য এবং সেটা যখন আপনারা বুঝতে পারছেন তখন আমাদের হাতে হাত মিলিয়ে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি এই আন্দোলনে সামিল হন। আমরা দীর্ঘকালীন একের পর এক আন্দোলন আমরা চালিয়ে যাচ্ছি। আমরা চাইবো বেশি বেশি সংখ্যক মানুষ সচেতন নাগরিকরা আমাদের সঙ্গে আসুক এবং এই যে আন্দোলন, এই যে বিধর্মী মানে যারা পাকিস্তান জিন্দাবাদ করে জিহাদি, যারা পাকিস্তান জিন্দাবাদ করে এই জিহাদিদেরকে এক মুহূর্ত এখানে টলারেট করা যাবে না, এক মুহূর্ত এখানে রাখা যাবে না। তাতে আমাদের উপর, আমাদের কার্যকর্তাদের উপর একাধিক কেস হোক, একাধিক নন লেভেল সেকশনে মামলা হোক, আমরা এই কেস খেতে রাজি আছি। এবং আমি বলি দেশের অখণ্ডতার স্বার্থে আমাদের যদি জীবনও চলে যায় আমরা তাতে রাজি আছি। আপনারা দেখে থাকবেন কয়েকদিন আগে বিরাটি থেকে একজন ধরা পড়েছে, পাকিস্তানি নাগরিক, 12 বছর ধরে আছে, প্রায় 22খানা পাসপোর্ট তৈরি করে দিয়েছে। এই 22খানা পাসপোর্ট কাকে তৈরি করে দিয়েছে? এইরকম আমাদের আসানসোলেরও আনাচে কানাচে খুঁজলে দেখতে পাবেন এইরকম পাকিস্তানি নাগরিক যারা পাসপোর্ট নিয়ে এসেছিল, এখন সে তার ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে, এইরকম আনাচে কানাচে রয়েছে। তাদেরকে ডিটেকশন করা, তাদেরকে শনাক্ত করা, তাদেরকে খুঁজে বের করা আমাদেরও নৈতিক কর্তব্য। এবং দেখবেন যে এই কাজটা করতে গিয়ে কোনো রকম প্ররোচনায় যেন কেউ পা দেবেন না। আমরা ডিএম এর কাছে যাচ্ছি, মানে আমরা প্রশাসনকে আমরা জানাচ্ছি যে আপনারা আপনার কাজ করুন। পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসন তো ওই চটি চাটাতে দাস প্রশাসন, কতটা কাজ করবে জানি না। তাই যখন প্রশাসন কাজ করবে না তখন ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তারা এই কাজটা করবে। আমরা ডিএম সাহেবকে বলবো একটা সময় দেওয়া, সময়ের মধ্যে খুঁজে বের করুন, আর না হলে আমাদের ভলেন্টিয়ার, আমাদের কার্যকর্তারা পাকিস্তানি নাগরিকদের খুঁজে বের করে পাঠানোর ব্যবস্থা করবে। নমস্কার, বন্দে মাতরম, ভারত মাতার জয়। सेल आईएसपी यूनियन इलेक्शन से पहले आईएनटीयूसी को बड़ा झटका। सेल आईएसपी यूनियन के इंतखाबात से पहले आईएनटीयूसी को बड़ा धचका। आईएनटीयूसी से मुतालिक आसनसोल आयरन एंड स्टील वर्कर्स यूनियन को बड़ा झटका लगा है। सेक्रेटरी श्रीकांत शाह ने यूनियन से इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर अपने इस्तीफ़ा की इत्तला देते हुए यूनियन से वाबस्ता मुख्तलिफ ग्रुप्स को भी छोड़ दिया। श्रीकांत शाह ने लिखा है कि आईएनटीयूसी बरनपुर की क़यादत से इख्तलाफ की वजह से आज उन्होंने यूनियन के सेक्रेटरी के ओहदे समेत दीगर तमाम ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया है। इस हवाले से यूनियन के सदर हरजीत सिंह का कहना है कि मुझे सोशल मीडिया से इस बारे में इत्तला मिली है, हालांकि ये तीसरी बार इस्तीफ़ा दे रहा है। अगर यूनियन से इख्तलाफ था तो उसे मुनासिब फॉर्म पर उठाया जाना चाहिए था। वो यूनियन की एजीएम में भी शरीक नहीं हुए और सेक्रेटरी मुकर्रर होने के बाद भी वर्किंग कमेटी के अजलासों में शरीक नहीं हुए। उनके कुछ ज़ाती मुतालबात थे जिसकी तकमील मुमकिन ना थी। वो जहाँ भी जाए खुश रहे। सेल की रामनगर 48 साल से काम करने वाले कोलवरी की डेबोडिया कान में तकरीबन किदार
पेन होल पैक ऑपरेटर की मौत पर मुलाजमत और मुआवजे का मुतालबा करते हुए रामनगर कोलवरी इंतजामिया का घेराव करके मुजाहरा। बताया जाता है कि रामनगर कोलवरी की डिपोटिया कान में काम करने वाला केदार 5 होल पिक ऑपरेटर के तौर पर काम कर रहा था और वो 16 मार्च को काम करते हुए बुरी तरह जख्मी हो गया था। मुकामी अस्पताल में इलाज के बाद डॉक्टरों के मशवरे पर दोपहर को कोलकाता रिफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान कल उसकी मौत हो गई। शाम देर गए लाश पहुंचने के बाद रामनगर की ख्वातीन ने कोलवरी इंतजामिया का घेराव किया की बेटी श्वेता पान को नौकरी देने का मुतालबा किया। इस सिलसिले में रामनगर कोलवरी के GMJ अहमद और नीलेश कुमार मुकामी लोगों और MLA डॉक्टर अजय पोद्दार के साथ कई दौर की बातचीत की गई। कोलवरी GMJ अहमद ने बताया कि मतवफ़ा के अहले खाना को आखिरी रसूमात के लिए 16,000 रुपये और ज़ेर कफ़ालत बेटी को नौकरी दी जाएगी। अब है समय मोमेंट के SMS का। लाइफ इज XXX। Yesterday is experience, today is experiment, tomorrow is expectation. So your experience in your experiment to achieve your expectation. ज़िंदगी XXX है, कल तजुर्बा है, आज तजुर्बा है, कल उम्मीद है। लिहाजा अपनी तवक्कात को हासिल करने के लिए अपने तजुर्बे में अपने तजुर्बे का इस्तेमाल करें। बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दीगर इश्तहारात के लिए दिए गए नंबरों पर राब्ता कायम करें।